جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، گھنٹہ گھر موبائل مارکیٹ حبیب ٹاور کے نام سے ایک مارکیٹ بنائی بلڈر نے. ہم لوگوں نے وہاں پر دکانیں خریدی، بلڈروں کو پیسے دیے، رجسٹریاں لی. رجسٹریاں ہمارے نام پر ہیں اور اس صورت میں ہماری دکانوں پہ تالے لگائے جا رہے ہیں کچھ لوگ آ کر، اور اس کی سرپرستی ایس ایچ او کر رہا ہے. ہم ایس ایچ او کے پاس گئے تو ایس ایچ او کہہ رہا ہے یہ رجسٹری 2 نمبر ہے. اگر یہ رجسٹری 2 نمبر ہے تو آپ ثابت کریں. تو اس کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں، نہیں تو آپ کے خلاف FIR کاٹی جائے گی. جیسا کہ ہم وہاں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں یا ہم نے وہ مفت میں جگہ خریدی. تو یہ سراسر انتظامیہ کی طرف سے بھی ہمارے ساتھ ناجائزی ہو رہی ہے. آج یہ ہمارے ساتھ ہے، کل یہ پورے سکھر کے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے بدماشی کی جائے گی، تالے لگائے جائیں گے. تو تالے لگانے کا مقصد جو ہے وہ سب کو تکلیف دیں گے. ہم لوگوں نے تو الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ہمارے حاجی شریف بندانی اور ہماری برادری کے لوگوں کے تعاون سے ہم نے تو اپنی دکانیں کھول لی ہیں، لیکن یہ مسئلہ ہمارا اکیلے کا نہیں ہے. یہ آئندہ آپ لوگوں کے لیے بھی، سکھر شہر والوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنے گا. تو لہذا ہماری یہ پرزور اپیل ہے کہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے. آپ لوگوں کا شکریہ. السلام علیکم. یہ کی صورتحال اب میں شریف بنانی صاحب کے بھی صاحب سے گزارش کروں گا اور اپنے تھوڑی خیالت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ہمارے محترم صدر حاجی محمد شریف بندانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتفاقاً میں سکھر آیا بتا تو انہوں نے کل مجھے دعوت دی یہاں آنے کی. ان کی مہربانی اور ان کی جو کمیٹی ہے ان کی مہربانی، اور یہاں پر آئے ہوئے میرے تمام بزرگ اور تمام شہر کے تاجر، یونین کے تمام ہمارے پرانے دوست مہربان ہیں، وہ بھی یہاں پہ آئے، ان کا بھی شکریہ. اور برادری کے تمام نوجوانوں کا شکریہ وہ یہاں تشریف لے کے آئے. سب سے ایک مسئلہ جو سکھر کا اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، جس پہ حاجی صاحب کی مہربانی سے اور اپنی برادری کی مہربانی سے انہوں نے ایک اتنا اچھا پروگرام ارینج کیا ہے. بات ہے کہ سکھر شہر جو ہے تمام برادریاں یہاں بستی ہیں، تمام قومیتوں کے لوگ یہاں ہیں، موجود ہیں. تاجر برادری کا ہمیشہ سے ہماری برادری کے ساتھ ہمیشہ سے تعاون رہا بھی ہے، اور الحمدللہ اس کے علاوہ ہماری برادری نے شہر کے اندر جب بھی کوئی کسی بھی معاملے کے اوپر اگر کوئی احتجاج کی کال ہو یا شہر کے حوالے سے، کسی برادری کے زیادتی کے حوالے سے کوئی بھی چیز ہوئی تو ہماری برادری نے ہمیشہ سکھر کے شہریوں کا ساتھ دیا ہے. اور سکھر کے شہر کے لوگوں کو بھی پتہ ہے بندانی برادری کے بارے میں، اور یہاں کی انتظامیہ کو بھی اچھے سے پتہ ہے کہ ہماری برادری کا جو تعلق ہے، ہماری برادری کے جو بڑے ہیں یا بزرگ ہیں، ہماری برادری کے جو نوجوان ہیں، وہ کسی سے ڈر اور خوف کھانے والے ہیں نہیں. ہمیشہ سے ہم نے اس شہر کے اندر بڑے بڑے جتنے بھی جو اس طرح کے بتل، کھور، چور، چکار، منشیات ہو، ان کو ہم نے اچھے سے مگر اس شہر کے اندر ٹیکل کیا ہے. اور ہمارے لیے اس برادری کے لیے بھی نئی چیزیں نہیں ہیں کہ اس معاملے کو ہم ٹیکل کر نہیں سکیں. تو آج تاجر برادری کو بلانے کا حاجی صاحب کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہمارا ہمیشہ سے آپس میں ایک دوسرے سے تعاون رہا ہے. سکھر کی تاجر برادری نے بھی ہماری برادری سے تعاون کیا، اور ہم نے بھی ہمیشہ سکھر کی برادری سے تعاون کیا ہے. یہاں پہ ہماری برادری ماشاءاللہ سکھر کی ایک بڑی برادری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس شہر کے اندر اور بھی دیگر کئی بڑی برادریاں ہیں. تو ہمیں شہر کے معاملات کے اوپر جو اس طرح چوری ڈکیتی ہو رہی ہے، قبضہ گیری اور یہ دکانوں پہ قبضے، فلیٹوں پہ قبضے، ہمیں تو الحمدللہ ان چیزوں سے مقصد ہم سمجھتے بھی ہیں اور ہم اس چیزوں سے نمٹنا جانتے بھی ہیں. ایسا نہیں ہے، سب شہر کے سب اپنا پولیس کو بھی پتہ ہے اور انتظامیہ کو بھی پتہ ہے کہ بندانی کس نیچر کے لوگ ہیں. لیکن میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ شہر کے جتنی بھی ہماری جو بڑی برادریاں ہیں، جس طرح ہم نے حاجی صاحب کی مہربانی سے ہماری برادری ایک پروگرام ارینج کیا ہے، تمام برادریوں کے لوگوں کو، ہمارے جتنے بھی شہر کی تاجر برادری ہیں، شاہی بازار کے لوگ ہیں، صرافہ بازار ہیں، اتنے جتنے بھی ہماری تاجر برادری کے نمائندے ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں. یہ شہر ہمارا، آپ کا، سب کا شہر ہے. یہاں کے نمائندے ہیں جو آپ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، جو ہمارے علماء کرام ہیں، مختلف لوگ ہیں،
ان کے ساتھ سب کے ساتھ بیٹھ کے انتظامیہ کو، کیونکہ انتظامیہ کو ہلانا پڑے گا، وہ ہلتے نہیں ہیں اس طرح، ان کو ہلانا پڑے گا کہ اگر شہر کے اندر اس طرح کے معاملات چلتے رہے، اگر آپ ان چیزوں کو روکنے میں ناکام رہے تو ہمارے پاس پھر دیگر راستے بھی ہیں، ہم دیگر راستے بھی اپنا سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اس شہر کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں آج ہماری برادری کے ساتھ ہیں، پھر کسی اور کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں. اچھے افسران بھی اس شہر کے اندر لے کر گئے، اچھے SSP لے کر گئے، DC کمشنر، اچھے افسران بھی شہر کے اندر لے کر گئے. یہاں ڈکیتیاں، چوریاں، چکاریاں نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ 3 سال کا پیریڈ ایک ایسا پیریڈ آ گیا ہے شہر کے اندر کہ ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے شہر کے اندر ڈکیتیاں بھی ہو رہی ہیں. ابھی پچھلے دنوں اسرافہ بازار، اپنا مارچ بازار میں ڈکیتی ہوئی، وہ ہمارے بندانی تھے ان کے گھر پہ ڈکیتی ہوئی، پھر ہمارے بندانی کے یہ جو فلیٹ تھے ان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی، پھر دکانوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ ہماری برادری کے ساتھ نہیں ہے، کل کو آج اگر ہمارے ساتھ ہے تو یہ کل پورے شہر کے لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہماری، آپ کی، سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب جوڑ کر بیٹھیں، اس مسئلے کا حل نکالیں. شہر کی تمام برادریوں کے سیدھا جو لوگ ہیں، جو معززین ہیں، ان کو بلا کر ایک باقاعدہ اجلاس بلائیں. DIG یہاں بیٹھا ہوا ہے، SSP بیٹھا ہوا ہے، DC ہے، کمشنر ہے، یا انتظامی دیگر لوگ ہیں یا حکومتی لوگ ہیں. لازم رہتے ہیں، میرا بھی تعلق، اب پہلے میرا جس پارٹی سے تعلق، میرا بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ معاملہ ساری چیزیں ہوں گی، ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے اس کو آگے لے کر جائیں. ہماری کیوں لازم ہے برادری نے ہمیشہ میرے اوپر احسان کیا ہے، میری ان کی محبت ہے کہ 2 دفعہ میں سکر شہر سے MP رہا. پورے سکر شہر کی تاجر برادری، تمام برادریوں نے، چاہے اس میں کسی بھی قومیت کے لوگ ہونے، سب نے ہمیشہ سے مجھے محبت دی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے کے اوپر بھی جو بھی آپ لوگ ایک متفقہ ایجنڈا طے کریں گے، وہ یہاں انتظامی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ان سے بات چیت کرنے کے ساتھ ساتھ اوپر لیول پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ کسی بھی طرح انتظامی معاملات میں اگر سکر کے شہریوں کو اور سکر کی برادری میں سکر کے لوگوں کو تنگ کیا گیا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پاس ایک احتجاج کا بھرپور راستہ موجود ہے. ہم کسی بھی صورت میں سکر کے شہریوں کو انشاءاللہ تعالیٰ نہ پہلے اکیلا چھوڑا ہے، نہ آپ چھوڑیں گے. تو مجھے امید ہے کہ سکر کی تاجر برادری سے بھی اور سکر کی دیگر برادری بھی وہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر بیٹھیں گی. جس طرح ہمارے صدر صاحب نے یہ قدم اٹھایا کہ اس طرح دیگر برادریاں اور تاجر برادری بھی اس معاملے کے اوپر ایک باقاعدہ کوئی پلان بنائیں کہ اس میں آل پارٹیز کانفرنس ہے. ہمارے پرانے دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں، عبید اللہ بھٹو، ابن آزاد صاحب، بدر قریشی صاحب بیٹھے ہیں، تاجر عامر بھائی بیٹھے ہیں. یہاں پہ سارے یہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سکر کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں. لوگ کوئی بھی مسئلہ ہو شہر کے لیے تو یہ مسئلہ بھی ایک سکر کا اہم مسئلہ ہے. جس طرح یہ چوری چکاریاں، بھگا خوری ہیں، معاملات ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک متفقہ لائے عمل بنائیں. بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، مجھ سے جو بھی ہو سکا انشاءاللہ اپنی برادری کے لیے اور شہر کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہر قسم کے کاموں کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہر احتجاج میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. بڑی مہربانی. ہم نے ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، دوست بھی کافی ہیں، کچھ لے بھی جائیں گے، کچھ معذرت کے ساتھ تھوڑی مختصر طور پہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں تاکہ پھر کام کو 5 منٹ تک پہنچایا جا سکے. ہم منسٹر روڈ کے ہمارے محترم عامر فاروقی صاحب سے کہوں گا وہ اپنے خیالات کے اظہار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شریف بنگانی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ گلدستہ سجایا. سکر شہر کی تقریباً تمام تاجر برادری آج اس جگہ موجود ہے، جس میں آپ دیکھیں یہ ظہیر بھٹی اور یہ ہمارے ممتاز لکی صاحب اور یہ اناج مارکیٹ سے شبیر صاحب اور یہ اپنے پرویز چنا، یہ سب یہاں موجود ہیں. اس کی موجودگی کا مقصد مجھے یہ لگتا ہے کہ سکر کو ضرورت ہے اس وقت اتحاد کی. جب تک ہم تاجر برادری ایک پلیٹ فارم پر متحد نہیں ہوں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح لوٹ مار بھی ہوتی رہے گی، اسی طرح بیوروکریسی ہمارے اوپر جو ہے نا مختلف ذرائع سے حملے کرتی رہے گی. جیسے آپ نے دیکھا سکر کے ساتھ آج جو کیا گیا ہے کہ کراچی کے اندر کووڈ کی جو حالت ہے، میں کہہ رہا ہوں سکر کے اندر جو پوزیشن ہے میرے رب کا کرم ہے، لیکن ہمارے ساتھ وہ پوزیشن کی ہے کہ کراچی کے ساتھ ملاتے ہوئے ہم لوگوں کو بھی لاک ڈاؤن کا حصہ بنا دیا گیا. بہرحال جو یہ چوری چکاری جو پوزیشن ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے. اس کی رسپانسبلٹی تمام SHOs کے اوپر آتی ہے کہ وہ جب اپنے علاقے کو سیف نہیں رکھ سکتے
तो उनको सीट पर रहने का कोई इख्तियार नहीं है। तो मेरा मकसद ये है कि ये बहुत जबरदस्त आपने शरीफ भाई ये प्रोग्राम सजाया। आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हम लोगों को यहाँ पर मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगर हम जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे ऐसी हरकत होती रहेंगी। और ये चोरी है, ये मत समझे कि मोटरसाइकिल फला की चलेगी, कल मेरी भी जा, अगर ये इस तरह की वारदातें होती रही तो ये कल हमारे गिरफ्तारों तक पहुंच जाएंगी। इसलिए जरूरत है अब हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होने की। तो ये जो आपने आप ही की बरादरी का एक हिस्सा है, तो बराबरी अख्तियार तक सक्खर की आवाज को पहुंचाएं। तो इस तरह सक्खर की ताजिर बिरादरी आपके साथ भी ताउन करेगी। और मैं समझता हूं कि यहाँ पर इस्लामुद्दीन शेख साहब भी मौजूद है, तमाम लोग जो सक्खर के हैं, आज उनको भी हमारी परेशानियां पर एक्शन लेना चाहिए कि सक्खर के अंदर जो वारदातें बढ़ रही हैं इसकी जो जिम्मेदारी जो SHO जो वो अगर पूरी जिम्मेदारी नहीं निभा सक रहे तो इसके लिए SSP साहब को चाहिए कि अपनी टीम को तब्दील करें। जब तक ये टीम तब्दील नहीं होगी इसी तरह वारदातें बढ़ती रहेंगी। ये आपने छोटी मोटी चोरी तो पकड़ ली, जो लाखों रुपए की चोरी आज तक वो चोर तो नहीं पकड़े गए। तो मैं जनाब ये गुलदस्ता सजाने पर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम अगर आप करेंगे तो यही सक्खर की ताजिर बिरादरी के दिलों में मोहब्बत पैदा होगी और ये सब समझेंगे कि यहाँ पर कोई 27 का आंकड़ा नहीं है, कोई 55 का आंकड़ा नहीं है। हम लोग सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पर इस जगह मुत्तहिद है। और इसी तरह मेरी दुआ है कि सक्खर के तमाम ताजिर बिरादरी एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होकर नारा लगाया, ताजिर कहा जिंदाबाद। मेहरबानी आमिर भाई, सही बात कही आपने कि जब तक इत्तेहाद नहीं होगा काम आगे नहीं बढ़ेगा। हम सबको इत्तेहाद पे आना पड़ेगा अपने हक के लिए, अपने जायज हकूक के लिए, अमन के लिए, अपने बच्चों की नस्लों की हिफाजत के लिए। क्योंकि मंशियात वाले जिस तरह धंधराते फिरते हैं, कोविड-19 आप दुकान खोलते हैं तो इस तरह आप ताजिर बिरादरी को अपनी दुकान खोलने में जिस तरह उसके साथ बिहेवियर होता है, अगर ये गुंडागर्दों के साथ हो जाए तो गुंडागर्दी खत्म हो जाए। अब मैं अपनी बिरादरी के हमारे दोस्त नासिर पवार साहब से गुजारिश करूंगा अपने ख्याल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब हाजी मोहम्मद शरीफ बंदानी साहब और तमाम मौजूद मेहमान गिरामी जो यहाँ पे तशरीफ लाए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कहना तो ये चाहिए कि हाजी शरीफ साहब ने बड़ी एक जुर्रत की है कि इस जिस मसाइल की तरफ और जो एक ताजर बरादरी या इवन पूरा सक्खर शहर जिससे मुतासिर है उसके लिए एक हिम्मत करते हुए एक ऐसी ताजरों की मीटिंग कॉल की है जिसके अंदर एक देरीना मसाइल हैं। ये एक शुरू से बदअमनी का मामला हमारे सक्खर शहर को लपेट में लिया हुआ है। हालात ये हैं कि अब तो हमें शायद उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा हुक्मरान तो शायद मैसर न मिल सके, लेकिन वो बद्दू भी आज अवेलेबल नहीं है कि जिस बद्दू ने जुर्रत करके एक अजीम शान सरबराह के सामने अपना मसला उनसे सवाल किया और उसके लिए बड़ी हिम्मत से उनके आगे अपना मसला रखा और उसका जवाब उनसे तलब किया। तो शायद अब हमें यही एक कमी है कि हमने पूरे सक्खर शहर में अगर आप इन मसाइल को देखें तो हर मार्केटों में औहदों की भरमार है, अमल का फुकदान है। इस अमल के फुकदान ने देखें आज जो मुतासिर हुए हैं, कल आप और हम इनके यकीनन जो जिस तरीके से बातें बढ़ेंगी हम उनके मुतासरीन हम और आप ही होंगे, हमारी नस्लें होंगी। तो सबसे जो अहम बात है बहुत सी बातें की गई, बहुत से जो है प्रोग्राम बनाए गए और प्लेटफार्मों की बात की गई, लेकिन आप यकीन करें कि जब तक अमली तौर पे आप और या आपके जितने ये ओहदेदारान में से एक एक बंदा अमली तौर पे अगर एक वारदात पे भी इसी तरीके से जिस तरह हाजी शरीफ साहब ने बंदानी चूंकि बंदानी मुतासिर हुए और इन्होंने उस चीज को लिया, तो ये एक समझो सक्खर के लिए एक बड़ी फख्र की बात है कि हमने हिम्मत की और आप लोगों को आपका ताउन भी चाहा और आप लोगों को इस मसले के लिए मदऊ भी किया कि आए बैठे और इसके बारे में एक जामे ठोस पॉलिसी बनाएं और इसके लिए अपनी आवाज बुलंद करें।
دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر انتظامیہ نے آج تک اس پہ کوئی کام نہیں دھرا یا ایس ایچ او کی اتنی ضرورت ہے کہ وہ ایک ناجائز بات ہے اتنے دھڑلے سے آپ کو دبانے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اس میں یہ کہوں گا کہ ہمارا قصور ہے کہ ہم آج تک اس مسئلے کی ہم نے اس کے لیے جتنی ہمیں اس کے لیے پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا۔ تو اہم میٹنگیں بھی ہوتی ہیں، جلسے بھی ہوتے ہیں، ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، تذکرے بھی ہوتے ہیں، عملی طور پہ ہمارے عمل کا فقدان ہے۔ یہ ہماری تاجر برادری کی کوتاہی ہے، کمی ہے، جس کو ایڈریس کرنا چاہیے اور جس کے بارے میں آپ لوگوں کو سیریسلی سوچنا چاہیے، اور آج یہ طے کر کے اٹھیں کہ اس معاملے میں میں کہتا ہوں آپ کو کسی سیاستدان کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اتنی بڑی طاقت ہیں کہ اصل سیاستدان آپ کی طاقت پہ چلتا ہے۔ سیاستدان طاقتور نہیں ہے، آپ طاقتور ہیں۔ خدا کی قسم آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کے سامنے یہ ریت کی دیوار ثابت ہوں گے، یہ ایس ایچ او، یہ کوئی وکیل، یہ کوئی جج، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ اپنی طاقت کو استعمال تو کریں۔ آپ اپنے جو عہدیداران، ہر مارکیٹ کے اندر ایک صدر موجود ہے، ہر مارکیٹ میں جنرل سیکرٹری موجود ہے۔ مجھے یہ بتائیں کس نے اپنا ٹائم نکال کے ان جو لوگ جتنے زخمی ہیں، جتنوں کے ساتھ ڈاکے، جن کی دکانوں پہ قبضے یا جن پہ حالات آئے ہیں، ان کی گٹ بھرائی پہ کتنوں نے اپنا ٹائم نکال کے اس کے ساتھ دنوں رات اس کے ساتھ کیا ہے اور اس کو بیک اپ کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں سب سے بڑی کمی ہماری یہی ہے۔ آج اس محفل کے حوالے میں مختصر عرض کروں گا، اس محفل میں آپ آئے ہیں، عملی طور پہ آج طے کر کے جائیں کہ ہم نے کل ڈی سی، کمشنر، ڈی آئی جی، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کی اگر یہ یکجہتی کا اسی طرح بے مثال جس طریقے سے آپ نے بھرپور شرکت کی ہے، یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں وزیر اعلیٰ سے بھی ہم ملنے کے لیے تیار ہیں، وداؤٹ کسی کی سفارش، وداؤٹ کسی سیاسی ریفرنس کے۔ آپ ہمت کریں، آپ اپنے عہدیداروں کو جگائیں۔ آپ کے ساتھ حالات ہیں، آج کسی دوسرے کو کوئی دوسرا ساتھی متاثر ہوا ہے، کل میں متاثر ہوں گا، ہمارے بچے متاثر ہوں گے۔ آپ کی مارکیٹوں میں یہ کام آپ پہلے سے دیکھیں کہ بجائے کم ہونے کے ڈکیتیاں بڑی ہیں، موٹر سائیکلوں کی چوریاں بڑی ہیں، یہ حالات بڑھتے جائیں گے۔ آپ خدارا عملی طور پہ کریں اور عملی طور پہ ایک دوسرے کو اور خاموش نہ بیٹھیں۔ آپ اپنے طور پہ اب یہ نہ سمجھیں کہ وہ عہدیدار ہے تو وہی کرے گا۔ ایک ادنا بندہ ہے جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا کہ میں ایک عام آدمی ہوں، وہ بھی اس کو پش کرے، لیکن جناب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی لیول تک کرے، عہدیدار اپنے لیول پہ کریں۔ میں خدا کی قسم کہتا ہوں کہ آپ کے مسئلے سکھر امن کا گوارا ہوگا اور آپ کے مسائل یقیناً سنے جائیں گے۔ شکریہ۔ چلو صحیح کہا کہ جب اتحاد نہیں ہوگا، کبھی کسی اللہ معاف کرے، اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو خود خیال نہ ہو۔ اگر آپ کو خود خیال نہیں ہوگا تو اوپر سے کوئی مشکل نہیں آئے گی، پہلے نکلنا پڑتا ہے، پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ اب میں عبد الستار صاحب کئی آواز سے تعلق رکھتے ہوئے ان سے گزارش کروں گا، عبد الستار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شریف بندانی صاحب، جناب ایم پی صاحب، سابقہ ایم پی صاحب اور دوسرے عہدیدار صاحب، السلام علیکم۔ بڑی تقریر سنی میں نے، بڑے غور سے سننے کے بعد میں آپ اس نتیجے پہ پہنچا کہ اتحاد والی تو بات درست ہے، ہم نعمان کا پوزیشن بھی خراب ہے، لیکن بھائی اس کے کاغذ بھی تو دیکھیں، اس کے افیکٹ بھی دیکھیں کہ کیا کاغذ ہیں یہ سب کچھ ہونے لگ گیا۔ سب سے پہلے یہ کہ ہمارے کو خود بھی شعوری ماتر ہمیں یہ شعور نہیں ہے کہ جو پراپرٹی ہم خریدتے ہیں کیا آیا وہ پراپرٹی جو ہے یا وہ بلڈر جو ہے ایماندار ہے، رجسٹرڈ ہے۔ یہاں بدقسمتی یہ کہ انلیگل کام ہوتا ہے، جو اٹھتا ہے ایک پلازا کھڑا کر دیتا ہے، نہ تو اس کی رجسٹریشن بھی ہوتی نہ NOC بھی ہوتے ہیں، لیکن لوگ پیسے بنانے کے لیے یہ لوٹ مار کا دھندا جو ہے نا، یہ یہاں بہت انوکھا ہے۔ کراچی میں ضرور بلڈر کام کرتے ہیں، لیکن جس طرح سرکل میں کام ہو رہا ہے، میں بڑے معذرت سے کہوں ہمارے عوام کو جس طرح بیوقوف بنایا جاتا ہے
اور کوئی نہیں. اگر ایک پارٹنر ہے, دوسرا پارٹنر آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں رسکی ہے. جیسے اس کیس میں نے پوری طرح ان کو سنا, میں نے لیگل ان کو پوائنٹ بتایا, سمجھیں. کہ اب یہ مسئلہ یہ اجتماعی طور پہ بھی ہمیں شعور پیدا کرنا ہے. باقی تاجر برادری ہمیشہ سے کرتی رہی ہے, اور شریف خاندانی کو اس لیے یعنی ان کا شکریہ ادا کروں, انہوں نے یہاں لا کے ہمیں اکٹھا کر دیا. اور یہ سوچ رہا اب ہم سب کا کام ہے کہ اس کام کو کیسے آگے بڑھائیں. جذباتی تقریریں ہم کرنے سے بیکار ہے, ہمیں پریکٹیکل کر دینا چاہیے. اور پریکٹیکل کرنے کے لیے میں اس وقت آپ کو جو پرپوزل دے رہا ہوں, میں چاہتا ہوں چند آدمیوں کی ایک کمیٹی آپ بنا لیجیے. اس میں یہ سارا جو مسائل اس وقت ہے اس کو لیگل ریویو بھی کیجیے گا, اور اس کے بعد جو ہمارے ساتھ زیادتی ہے اس کو ریکارڈ میں لائیے. یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوگا, یہ ابھی کچھ دنوں بعد اوروں کے پاس بھی ہوگا. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ بات یہ یہاں تک نہیں ہے, یہ بہت آگے تک پہنچ. ایک نہیں ہے پروجیکٹ, یہاں پہ سینکڑوں پروجیکٹ ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ سارا انلیگل, اور وہ جس طرح وہ کر رہے ہیں تو کبھی بھی لے کے پیسے بیٹھ جائیں گے. لہٰذا ہم اپنے آپ میں چھوڑ کر رکھیں. اور یہ میرے پرپوزل پر اگر آپ بنا سکتے ہیں ایک کمیٹی بنا لیجیے, اور اس معاملے کو ہر ویو سے جو ہے ٹیکنیکلی ویو سے بھی, اور باقی اتحاد والی معاملہ ہے. میرے بھائی اتحاد کے بغیر تو کوئی کام نہیں چلتا. آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اتحاد بھی کرتے ہیں تو وہ بھی سیاسی سوجھ بوجھ سے کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو ذمہ داری اتحاد کی اسے پوری کیجیے گا. جب تک اتحاد کی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں تو یہ اتحاد جو ہے فش ہو جاتا ہے. میں بڑا بڑی بات کرتا ہوں, میرے ساتھ لوگوں کا یہی ہے کہ آپ بات ایسی کہیں لے جاتے ہیں. حقیقت I am going in the deep. I am considering all these things deeply. میں اس طرح نہیں کرتا ہوں کہ میں بڑا سوچتا ہوں. معذرت صاحب یہ میری عادت مجبور ہے, میں سوچتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بات سب کو میں سناؤں اور بتاؤں. اگر آپ لوگ مناسب سمجھے اس پرپوزل پر آپ کام کیجیے گا. میری خدمات سب تک ہوں گی, میں دوں گا. یہ میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کھلم کھلا, میں ایسے کو میں ان شاء اللہ آپ کو بھی ساتھ میں چاہوں. تھینک یو. یہ تو ہمارے بزرگ قاضی عبد الستار صاحب. اب میں ڈاکٹر قریشی صاحب سے گزارش کروں گا, کراچی بازار کے ہمارے بیمار ہیں جناب ڈاکٹر قریشی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم دوستوں, ساتھیوں, السلام علیکم. آج میں حاجی ہارون صاحب کی کمی محسوس کر رہا ہوں. میرے خیال میں یقیناً انہیں دعوت دی گئی ہوگی, لیکن وہ کسی وجوہات کی بنیاد پر نہیں پہنچ سکے. اس کے علاوہ سکھر کی 55 یونینز حاجی ہارون صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے 55 یونینز کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں. یہ آج یہ واقعات جو سامنے آئے ہیں اس سے بڑا دلی رنج ہوا ہے, کیونکہ اگر شہر اسی طریقے سے لاورت رہا تو میں سمجھتا ہوں پھر تو لوگوں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں رہے گی. برائے کرم آپ مہربانی کر کے اپنا وقت نکالیں. ہم اس سلسلے کے لیے حاجی ہارون صاحب کے یہاں ایک میٹنگ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی ان معاملات کو دیکھتے ہوئے ہم آخری دم تک جائیں گے. حالانکہ آج سے 15 روز پہلے ایس ایس پی اور ڈی آئی جی صاحب سے انہی معاملات پر میٹنگ ہوئی. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا شہر کے امن کے معاملے میں. تو میں زیادہ کہنا کچھ چاہتا نہیں ہوں اس وقت,
हकीकतन एक ये शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारा और इस मामलात में कोई इकदाम करने में नाकाम रहे हैं। मैं तमाम बंदानी बिरादरी, क्योंकि यहाँ से वास्ता नहीं है मेरा बंदानी बिरादरी से, ये भी दिल्ली के हैं और हम भी वहाँ के हैं, हमारे पुराने बड़े वहाँ से वास्तेदारी रही है और आज तक है। आज वो मुझे बुजुर्ग नजर नहीं आ रहे हैं जो बंदानी बिरादरी के थे। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को शीरो शकर की तरह कायम दायम रखे। हम वक्त हर वक्त अपनी बिरादरी, अपनी ताजिर बिरादरी, अपने दोस्तों के लिए, अपने लोगों के लिए हमेशा हर वक्त हाजिर रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी जनाब उबैदुल्लाह भुट्टो साहब इब्न आजाद बड़ा मुख्तसर खिताब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिना। मेरे अजीज दोस्तों, हिंदी में या उर्दू में? मुझे दोस्तों अॼु ॾाढी ख़ुशी थी आहे। जेको असां हमेशह कमु कयो आहे, अॼु उहो शरीफ़ ॿधाइणु शुरू कयो आहे। शरीफ़ ॿधाइण साहब खे मुबारकबाद ॾियूं था पिया। ऐं पंहिंजो असांजो ॿियो दोस्त सलीम भाई, असांजो पुराणो दोस्त आहे बचपन जो, ऐं असां हिननि जे ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा बि कया, वठण बि कई, धरना बि हया। पर मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, सुठी ॻाल्हि आहे, छो त ही बधानी क़ौम बाबा ईअं न सम्झो हिनखे, पाण चई विया जेकी राजपूत क़ौम आहे, राजपूत वारी बहादुर क़ौम आहे। मां सम्झा थो जेकॾहिं तव्हां असां सां गॾु हूंदो त इंशाअल्लाह मां सम्झा थो ही जेको सखर अॼु असांखे बदअमनी जी ऊंधाई में बुॾल नज़र थो अचे, इंशाअल्लाह इहा तव्हां असांजे इतिहास सां इहो इंशाअल्लाह रोशन करे तव्हांखे ॾेखारींदासीं। मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, हिन वक़्तु जेकी सूरत हाल आहे सखर शहर जी, सखर में इंतिहा दर्जे जी हिन वक़्तु लाक़ानूनियत आहे। अधे नकली कपट राज वारो जेको सिलसिलो आहे उहो सखर शहर में हले थो। इन जो असुली कारण जेको आहे, असांजा ख़ासि करे नाराज़ न थीजो यार, असांजा ख़ासि करे जेके हितों जा सियासतदान आहिनि, जेके हितों जा हिन वक़्तु MA ऐं MP आहिनि, छो ताक़त जो सरचश्मो अवाम न आहे, ताक़त जो सरचश्मो उहे सियासतदान आहिनि जेके हिन वक़्तु कुर्सियुनि ते वेठा आहिनि। ऐं उन्हनि जी आशीर्वाद सां जेके सॼो सखर शहर जेकॾहिं हू सचा आहिनि ऐं जंहिं तरीक़े सां अवाम उन्हनि खे पैगंबर फरमायो वॾे में वॾो जिहाद हुआ जेको हथ सां माण्हू खे रोके तलवार खणी, उन खां बाद में ॿिए नंबर में ज़बान सां रोके, टे नंबर में उनखे बुरो त सम्झो, इहो बि तव्हांजो ईमान आहे। मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, इन जे लाइ त हिन वक़्तु इहा तव्हां असांखे इतिहाद जी ज़रूरत आहे। तव्हां असां मायूस न कयूं, मायूसी चाहे कुफ्र ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह जी उम्मीद पर
ना उम्मीद न छो अल्लाह जी रहमत मां। मुजाजी दोस्तों, इन के लाए हवादिस से उलझ कर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुझे नाकामियों पर आश्क अफशानी नहीं आती। तव्हां असांखे जेके ललकारियो आहे, अॼु असां सभु ऐलान था कयूं त असां न को सिंधी आहे, न को बहादुर आहे, न को बलोच आहे, न को पठान आहे, न को मुहाजिर आहे, कोई न आहे। हिन वक़्तु सभु असां सकर शहरी आहियूं ऐं असां जेकॾहिं मुतहिद थियासीं या पुलिस क़ैद थींदी आहे, पुलिस खे इंशाअल्लाह लिकण जी बि जाइ न मिलंदी। हिन वक़्तु एॾी बदमनी हर खिटीअ मथां मोटरसाइकिल चोरी सरेआम बंदर रोड जे इलाइक़े मथां दंदनाते ये छाजे करे असां सोचूं था ये सब पुलिस जा टाउट आहिनि। जेके बि बदमनी आहे सब पुलिस कराए थी पंहिंजे हथनि सां। अगरि पुलिस सची थिए अरे सराउल आवासी जे दौर में त तव्हां कुझु करे ॾेखारियो, पीरगो में शायदि करण त कुझु करे ॾेखारियो। बाकी हिन वक़्तु सूरत हली आहे तो मुल्क थियो मर्द थियो, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। अब मैं रिजवान मेमन साहब सुन्नी तेरी कागजी गुजारिश करूँ अपने ख्याल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमन सल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ हाजी मोहम्मद शरीफ बंदानी साहब का और इनकी पूरी कमेटी का, जिन्होंने सक्कर की सतह पर क्राइम, माफिया, दहशतगर्दी, चोर डकैती पे हवाले से उन्होंने एक इजलास बुलाया ताजिरों का। रही बात सारी की सारी, जब तक हम ताजिर मुत्तहिद नहीं होंगे हम कभी कामयाब नहीं होंगे। हमारी मजबूरी का फायदा तीसरी कुव्वत उठाती है। दो ताजिरों की ग्रुप की वजह से हम एक दूसरे की रसाकसी में लगे रहते हैं। अगर शरीफ भाई पे कोई जुल्म हो रहा है तो रिजवान तमाशा बन रहा होता है, रिजवान पे जुल्म हो रहा है तो शरीफ भाई तमाशा बन रहा होता है। ये हमारी सरकार की मिसाल बन चुकी है। लेकिन जिस तरीके से मार्केटों के ताले लगाना, कपड़ा कर रहे हैं मना क्या की दुकान कोई भी है नहीं पता है उसका कई करोड़ों में इसका हिसाब फैसला हुआ है। आपको मालूम है ये तो हमने अपनी ताकत की वजह से उनको भगाया, लेकिन वो मेहमान है ना बेचारे और सुस्त रवि होती है, इताअत नहीं है, कई करोड़ में उसका फैसला हुआ है। तो ये भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए। अगर इसी तरीके से हम खामोश तमाशाई बने रहे, आज कुछ पे हो रहा है, कल तुम पे हो रहा है, कल तीसरे पे होगा, तो लिहाजा हमारी जो ताजिर तंजीमें जो दो ग्रुप में अलग अलग हैं, पहले तो हम शरीफ भाई से कहेंगे आप इसको इसका किरदार अदा करें, इन दो तंजीमों को मुत्तहिद करें, वरना हम कभी कामयाब नहीं होंगे। आज हमारे घर में कुछ नहीं, आज हमारी दुकान में कुछ नहीं, आज कोई ताजिर महबूब नहीं, कोई शहरी महबूब नहीं। 3 साल से एक ही बंदे की सरपरस्ती के अंदर ये लूटमार मची जा रही है। हमने एहतजाज किए, हमने धरने दिए, हमने प्रेस रिलीज निकाली, लेकिन इसका असबाब क्या मतलब हमें झूठे मुकदमा कायम किए गए। लेकिन जब ये लूटमार मची गई तो दुख इस बात का होता है कि हमारे यहाँ उठाने वाले भी बहुत होते हैं। उनको असले के हार पहना के फोटो सेक्शन करा के ऊपर रिपोर्ट भेज देते हैं, भाई सक्कर में बहुत वाह है, लोग उसको हार पहना रहे, गंजरा पे पहना रहे। इस चीज को खत्म होना चाहिए। ताजिर एक कुव्वत, एक ताकत है। आज हम अपनी कुव्वत को खत्म करके सियासी बुनियादों पर तकसीम कर रहे हैं। हमारी एक ताकत है, ताजिर मैशत की रीढ़ की हड्डी है। हमें अपनी ताकत दिखानी है बजाय किसी सियासी कंधे पे बंदूक रखकर। हम ताजिर जिस तरह के पवन साहब ने कहा कि हम ताजिर के प्लेटफॉर्म पर वजीर आला साहब की मुलाकात करेंगे। मैं दाद देता हूं उनकी, तारीफ करता हूं उनकी कि जिस तरीके से ने कहा ताजिर एक ताकत है, एक कुव्वत है। हमारे डेस्कों पे ये लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं और हम खेल महफूज हैं। चोर और डाकू जंगल में यानी के यहाँ आके इस तरीके से लूटमार कर रहे हैं जैसे इनके बाप का रोड हो, जिनका बाप का शहर हो। हमारी पुलिस इंतजामिया चंद दिन पहले नजर नहीं आ रही थी, जब से लॉकडाउन लगा है चारों तरफ हमारी पुलिस नजर आ गई है। क्यों? कोरोना में
क्या चोर और डाकू हैं? हम ताजिर चोर डाकू हैं? कोरोना जब लॉकडाउन लगा तो सारी पुलिस इंतजामिया ऑन हो गई, लेकिन जब हमारे ताजिर भाई लुट रहे हैं, हमारे घरों के सफाया हो रहे हैं, शहरी लुट रहे हैं, कोई बंदा महफूज नहीं, यहाँ तक के सैकड़ों गाड़ियां यहाँ से उड़ चुकी हैं, अभी तक उसकी रिकवरी नहीं हुई, मोबाइल चोरी हो रहे हैं, लेकिन कोई भुगतान नहीं। तो लिहाजा मैं शरीफ भाई को खराज तहसीन पेश करता हूँ, खुदारा आप अपनी निगरानी के अंदर कमेटी बनाए, तमाम ताजिरों को मुतहद करें, कोई अपने कमेटी बनाए, ताकि कोई भी मामला हो किसी भी ताजिर के साथ, किसी भी शहरी के साथ एक आवाज पे लब्बैक कह के पूरा सक्कर बंद होना चाहिए, फिर इनको टिकटिकी का नाच नचाएंगे। दूसरी बात, मैं सलीम भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ, सलीम भाई आप पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा हैं, नाराज नहीं होना। यहाँ जो सरपरस्ती चल रही है, बड़े लोगों की सरपरस्ती में ये काम हो रहे हैं, लिहाजा जब तक सियासी बुनियाद पर अफसरान मौजूद हैं, हमारा शहर कभी अमन का कायम नहीं होगा। सियासी बुनियाद पर ये अफसरान तैनात होंगे तो वो अपनी सियासियों की सुनेंगे, हमारी तुम्हारी नहीं सुनेंगे। मेरिट पे अफसरान लाने चाहिए जो हमारी सुने, ताजिरों की सुने और शहर में अमन कायम हो। मैं मिशन बोर्ड के जहीर भट्टी साहब से गुजारिश करूंगा, जहीर भट्टी साहब को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ शेख साहब का, इन्होंने इतनी बड़ी महफिल सजाई। सबसे बड़ी बात कि हम ताजिरों ने ठेका उठाया हुआ है, इन चोरों की, इन डाकुओं की खिदमत करें, इनको भरते रहे, कुछ ना करें। भाई हम वो लोग हैं जो इनको तनख्वाहें देते हैं, हमारे पैसे पे ये पलते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी नाइतफाकी, ये नहीं कि हाजी हारून बड़ा है, हाजी जावेद बड़ा है, हमारे लिए सब मौजूदीन है। सक्खर में चाहे वो एक यूनियन हो या 50 यूनियन हो, सब एक है, ताजिर एक है। आज ताजिरों को मुत्तहद होना पड़ेगा अपने हक के लिए। और शहर में देखिए हर तरफ बचा क्या हो रहा है, अंधेर नगरी मची हुई है, चोरियां डकैतियां, हम सबर करते हैं, लेकिन अब नहीं। अब ताजिरों को जागना पड़ेगा, ताजिरों को उठना पड़ेगा अपने हकूक के लिए। हम ताजिर अगर जाग गए, इनको भी पता है कि ये ऐसी ताकतें सोई हुई है, को सोने देना, लेकिन अब जागना पड़ेगा अपने हकूक के लिए। खबरदारा उठे, देखें, और अगर हमने अपना एमएलए खड़ा कर दिया फिर आपको जगह नहीं मिलेगी। लिहाजा हम अफसरान से वो गुजारिश करते हैं कि भाई शहर को देखो, दरवाजे ना खोलो गाड़ियों के, सिर्फ शहर की आवाम को देखो। दुकानों के ताले टूट रहे हैं, दुकानों से डकैतियां हो रही हैं, मोटरसाइकिलें तो आम बात हो गई, मोटरसाइकिल तो ऐसे थे बच्चे से छीन ली। तो भाई वो काम करो कि आपकी भी इज्जत हो, ताजिर भी महफूज हो, अवाम भी महफूज हो। गंदगी हमारे नसीब में, भंगी नाली में कचरा निकालता है, हलवा रख जाता है, 3 दिन के बाद उठाएंगे, ये भी हमारे नसीब में। यार हम क्या क्या देखें, हम तो आपको कुछ कहते ही नहीं, चलते जा रहे चलते। आप इतना तंग ना करो कि ताजिरों की दुकानों पे कब्जे हो, ताजिरों की घरों पे कब्जे हो, ताजिरों की इज्जतें महफूज ना हो। एक एसएचओ जिसको कोई इख्तियार नहीं है इस तरह बदतमीजी करने का, उसकी क्या ताकत है? वो हमारे टैक्स में पलता है, हमारे टैक्सों पे पलता है। आज हम ताजिर पर टैक्स रोक दें, ये रोडों पे भीख मांगेंगे हमारे सामने। तो इनको सबक सिखाने के लिए हमको मुत्तहद होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। कॉन्फ्रेंस मिले, ये जो हमने मीटिंग्स की हैं, ऐसे प्रोग्राम हो, एसएसपी डीआईजी से मुलाकात की जाए, उनके बैठ के डिस्कस किया जाए कि अगर ये हालात रहे आवाम सड़कों पे आएगी। ये खाली बंदानी बिरादरी नहीं है, पूरा सक्खर है, इसमें हर शहर लोग बैठे हैं, पंजाबी भी है, सिंधी भी है, माली सब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, सब सक्खर के शहरी हैं। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ताजिर और सारे शहरी मुत्तहद हैं, इंशाल्लाह मुत्तहद रहेंगे और इनसे अपनी जान छुड़ाएंगे। शुक्रिया। मैं वाली पर से ताल्लुक रखने वाले भाई निशाद चन्ना साहब से गुजारिश करूंगा अपने हाजी निशाद परवेज चन्ना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने ताजिर भाइयों को और शहर के मौजूदीन को सलाम पेश करता हूँ कि ऐसे मौके पे मुत्तहद होके यकजहती करके जो है आपस में इनको बताना चाह रहा है कि भाई अभी शहरी ताजिर उठ चुके हैं, अभी आपका जो है ना बस नहीं चलेगा। अगर हम मुत्तहद हो गए तो आपको रोडों पे घूमने भी नहीं देंगे।
ये कहाँ की बदमाशी जो है अब शुरू हो गई है। चलो धाड़े लग रहे हैं, लूट मच रही है, कपड़ा मार्केट में 20 लाख रुपए की जो है डकैती हो गई, उसका कोई जो है नहीं निकला सदोबाद। उसके बाद जो है शाही बाजार में 8 दुकानें जो है लूटी गई। उस 8 दुकानों के जो है ये क्या है, ये जंगल है क्या, ये शहर है भाई। यहाँ के उबेदुल्ला भुट्टो सही कह रहा है कि जो है सियासतदान और जो है पुलिस जो है खुद करवा रही है, हमारे ताजरों को परेशान कर रही है। हम क्या चोर हैं, डाकू हैं, जो लॉकडाउन लगता है तो घंटाघर सारा जो है पुलिस से भर जाता है, और हमारे जो है दुकानों पे आके जो है बदमाशियां करते हैं, दुकानदारों के लाठियां मारते हैं। क्यों? क्या चोर बदमाश इधर बैठे हुए हैं? ये सिर्फ इस वजह से कि हम मुत्तहद नहीं है। अगर हम मुत्तहद हो गए ना, कसम खुदा की इनको ताकत भी नहीं होगी कि ये आके किसी की दुकान पे बदतमीजी करें या ये करें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शरीफ बंदानी का, जिसने ये सबको मुत्तहद किया है और यहाँ बुलाया है। इस भाई की बहुत मेहरबानी है कि हमारे दोनों ग्रुप के लोग इधर आए हुए, ये भी बहुत बड़ी बात है। वरना कोई किसी के ग्रुप में नहीं जाता है, कोई किसी के ग्रुप में नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे जो भी आए हैं मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। भाई मुत्तहद होगे तो कुछ होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही रोते फिरोगे। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सही कहा। हमारे लिए हाजी हरून मेमन साहब, जावेद मेमन साहब और जितने हमारे दोस्त हैं सब मोहतरम है। हमने हाजी साहब को भी मतलब दावतनामा भेजा था, शायद अपने किसी मजबूरी में किसी वजह से ना आ सके हो, वो उनको पता होगा। हमारे लिए कोई ग्रुप नहीं, हम सब एक ही ग्रुप है। अब मैं मुमताज नकी साहब को कहूँगा अपने ख्याल के नाम। आपके बीमार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी साहब आ रहे थे, लेकिन आपको बताया कि वो बीमार हैं, दिल का मामला, शुगर का मामला, ब्लड प्रेशर मामला। अचानक उससे कह लगे कि बदल कुरैशी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है, लिहाजा वो उसकी जगह। सवाल उठ रहा है बदअमनी का, सवाल उठ रहा है इस शहर के लोगों की बेचैनी का, इस शहर के लोगों के आने वाले मुस्तकबिल का। ये सिर्फ एक ताले की बात ना समझे। ये ताजिर हजरात जो यहां मौजूद हैं, खुदा की कसम ये अपनी कोई भी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। ये सिर्फ दुकान खोल के कारोबार करना ही अगर ताजिर का काम है तो ऐसा ताजिर किसी काम का नहीं। जिस शहर में अमन ना हो वहां कारोबार क्या, जिस शहर का आने वाला बच्चा महफूज ना हो उसका मुस्तकबिल क्या। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकानों पर बेहिस होकर अपना कारोबार करते हैं। एक को तकलीफ आई तो 99 खामोश इसलिए हो जाते हैं कि मसला हल हो गया, हालांकि मसला हल नहीं होता। क्या उसे इल्म नहीं कि इस शहर में पुलिस है? क्या उन्हें इल्म नहीं कि इस शहर के ठेकेदार, इस शहर के सियासतदान बैठे? सिर्फ यहाँ तकलीफ करने से तो वो सियासतदान आने से रहे। ये सब कुछ बगैर एहतिजाज किए पुलिस को होश आने से रहा। क्या पुलिस को नहीं पता कि शराब कहाँ बिकती है? क्या पुलिस को नहीं पता चरस कहाँ बिकती है? क्या पुलिस को नहीं पता हीरोइन कहाँ बिकती है, चोर कहाँ बकते हैं और उनके पथारीदार कहाँ रहते हैं? उन्हें सब पता है। अगर पता नहीं है तो हमें नहीं पता कि हमारा हक क्या है, हमारे एहतजाज का तरीका क्या है, हमारी आवाज कैसे बुलंद होगी। सिर्फ शरीफ के कहने से आवाज बुलंद नहीं होगी, सिर्फ सलीम भाई के कहने से बुलंद नहीं होगी। हर आदमी को शरीफ बनना पड़ेगा, हर आदमी को सलीम बंदानी बनना पड़ेगा, हर आदमी को मजलूम ना होते हुए उस तमाम मजलूम के साथ मजलूम बन के खड़ा होना पड़ेगा। फिर कहीं ये इंसाफ की दुनिया शुरू होगी। ये क्या बेचते हैं? ये आज जो पुलिस लाइनों में बैठी होती है और कोविड के नाम पर या किसी एहतिजाज के नाम पर शहर को ब्लॉक तो कर देते हैं, क्या ये शहरियों की जिंदगी को महफूज बनाने के लिए खामोश रह सकते हैं? क्यों? कौन है ये लोग जो इनको लाइनों में देते हैं?
कौन है जो लाइनों को भरा हुआ है? इस पुलिस को लाइनों की जरूरत नहीं, शहर के कोने कोने चौराहे पे जरूरत है। उसको पूरा कराने के लिए कौन करेगा? जब ताजिर सिर्फ कहने के लिए इत्तेहाद नहीं होना चाहिए। ताजिर इत्तेहाद उस वक्त होगा अगर देखना था ताजिर इत्तेहाद तो सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 14 मार्केटों ने घंटा घर पे पूरी हुकूमत को हिलाकर दिखाया कि ताजिर इत्तेहाद ऐसा होता है कि अपनी नौकरियां, अपने सारे काम, अपने लोग, अपने मजदूर सब लेके उस रोड पर बैठ गए और जब तक नहीं उठे जब तक हमारा मसला नहीं हुआ। आपका इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस आपको आकर कहेगी आ जाओ हम आपका मसला हल करें। ब्लॉक कर दो इस सखर को, बंद कर दो इस शहर को जिसको संभाल नहीं सकते हो। न करो इस शहर में कारोबार जिसके अंदर तुम अपनी आवाज नहीं उठा सकते हो। आवाज उठाओ, शहर को बंद करो या इन बदकार, बदअमल और राशि अफसरान को इस शहर से शहर बदल करो। ऐसे अफसरान लेकर आओ जो इस शहर की खिदमत करे। कहते हुए डर क्यों लगता है कि एसपी को बदलो, डीआईजी को बदलो, डीसी को बदलो? भाई बदलो इनको के इसलिए कि ये इस काबिल नहीं है। 14 मीटिंगें, 10 मीटिंगें हाजी हारून के साथ हमारी हुई, उसके अब जवाब क्या था? आज मीटिंग हुई, सुबह उससे बड़ा धाड़ा पड़ा, सुबह उससे बड़ी चोरी हुई। क्या वो कपड़ा मार्केट के लोग बेवारी लावारिस है? कहाँ है ये ताजिर? जब वो 20 लाख रुपए की चोरी हुई वैसे ही खड़े हो जाते। अगर उस दिन खड़े हो जाते तो आज किसी के बाप में ताकत नहीं थी कि आपकी जगह में ताला लगा। जो ताला लगा दे उसको बता दो कि जिंदगी को ताला लगा देंगे, रोक देंगे इस पहिए को, जाम कर देंगे इस शहर को। मैं देखता हूं हुकूमत कर, हम पर हुकूमत करने वाले हमें अमल दे, हमारी शोटी उठा, हमारे लिए कुछ कर तो तू अफसर, वरना तू अफसर नहीं, तू चपरासी से बदतर। लिहाजा मेरे भाई, एज होने के लिए सोचने की नहीं। शरीफ भाई ऐलान करे सुबह से घंटा घर और पूरा शहर बंद बंद बंद। मुमताज भाई, अब मैं साबिक कप्तान साहब से गुजारिश करूंगा चंद ख्याल के इजहार। हमारे राजपूत भाई साबिक कप्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ मंदानी बिरादरी का, जिन लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम दिया हम लोगों को। मैं वक्त बहुत कम लूंगा आप लोगों का, सिर्फ 2 मिसरे कहूंगा। जो फौरी तौर पे कंप्लेंट सेंटर कायम हो। आपने जो बेड़ा उठाया है राजपूत बिरादरी, उस पे आपको सलाम पेश करती है और ताजिर इत्तेहाद की तरफ से भी मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। मेहरबानी। अब मैं म्यादी रोड के हमारे महतूम सदर अफजल मेमन साहब से गुजारिश करूंगा अपने ख्याल के बाद। अफजल मेमन साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मुमताज मलकुल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़साइसिही सल्लु अलैहि व आलिहि। सबसे पहले मैं जनाब हाजी शरीफ बंधानी साहब और पूरी बराती की तरफ से जो आज ये गुलदस्ता सजाया है और तमाम ताजिर हज़रात तशरीफ़ फरमा है और सबको बुलवाया गया है। माशाल्लाह शरीफ भाई ने बड़ी मेहनत की है, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर आने का जो मकसद है वो सब ने माशाल्लाह अपने अंदाज से बयान किया है और मैं भी कुछ चंद अल्फाज कह दूँ कि हमारे मलक साहब थोड़े मसरूफ थे और उनकी ज़रा तकरीर जो होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। लकी साहब ने की है तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि कुछ अल्फाज मैं भी बयान कर दूँ। तो जैसे कि लकी साहब ने फरमाया तो उस मीटिंग में मैं भी था और एसएसपी साहब से हमने भी बात की, डीआईजी साहब से बात की कि भाई ये जो मसला है
पहले पुलिस आती थी और गश्त होता था, 2 बाइकों पे बंदे आते थे, गली के उस कोने पे उस कोने पे जाया करते थे। वो पुलिस वाले कहाँ हैं? ना कोई गश्त है, ना कोई मामला है। जाहिर बात है कि वो बंद रोड पे आगे जाने पे जो हुई थी डकैती, तो वहां पर मैं जब आया तो उस वक्त जो मामला थे, बंदा बड़ा घबराया हुआ था, मैं भी साथ था वहाँ। तो उसके फौरन बाद हम अगले दिन गए मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा भाई कितने पैसे गए? तो उन्होंने कहा जी 10 लाख रुपए गए। दोबारा पूछा भाई कितने गए? भाई 20 लाख रुपए गए। और उन्होंने ये भी गलत बताया, पैसे तो कुछ ज्यादा गए थे। बहरहाल उन्होंने लिख लिया गया जी 20 लाख रुपए। तो बताने का मकसद ये है कि हम अपना मुद्दा लेके गए कि हमारे शहर की हालत खराब है, तो उन्होंने इस तरह से अंजाम फरमाई और बताई कि भाई देखिए ये जजेस होते हैं, इनकी खिदमत के लिए भी कुछ हमें बंदे भेजने पड़ते हैं, कुछ एमपीएस एमएलए होते हैं, उनकी हिफाजत के लिए गार्ड भेजने पड़ते हैं, कुछ सीपैक है, सीपैक के लिए भी तो बंदे भेजने पड़ते हैं ना सही। तो फिर आपको पता है जजेस हैं, उनकी भी हिफाजत के लिए हमें बंदे भेजने हैं। तो हम जाएं तो कहाँ जाएं? हम कहाँ जाएं मुझे बताएं। मैंने कहा भाई हम कहाँ जाएं ये बताएं ना। आपको जो तनख्वाह दी जा रही किस बात की दी जा रही है? आप जो आवाम है इनकी कैसी खिदमत होगी और अगले दिन की क्या गारंटी है? तो हमें बड़ी अच्छे अल्फाजों में उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। ये तो थोड़ी बहुत बात वारदात हो जाती है, ये आपको पता है शिकारपुर का रद्द अमल है, ये यहाँ का मसला है, ये सीपैक का मसला है, यानी कि सारे उन्होंने आइटम गिनती करवा दी। और अभी भाई परवेज भाई ने कहा जैसे लॉकडाउन आया, तो अभी पुलिस कहाँ से आ रही है? सोचने वाली बात ये है कि हम ताजिर लोग हैं, फौरन जल्दी मान लेते हैं, फौरन बात को बना लेते हैं और फौरन सुन लेते हैं और फौरन अजर टोपी भी पहना देते हैं। ये सारे मामला हम कर लेते हैं इसलिए कि हम ताजिर हैं और ताजिर खिदमत करता है और हर काम के साथ काम ले लेता है, चलो भाई ठीक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज शरीफ भाई ने जो यहाँ प्लेटफॉर्म लगाया है, तो सबसे पहले तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये 1996-97 से मैं हाजी हारून मेमन साहब के साथ हूँ और इन सबके साथ चला देखता आ रहा हूँ। लेकिन ये जो ताजिर मुख्तसर जो अलग अलग हो रहे हैं, अलग अलग बोल रहे तंजीमें, ये बिल्कुल गलत है। जो एक तंजीम अमल में आई है स्मार्ट कॉटेज इंडस्ट्रीज, हारून भाई की मेहनत है, उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी लगाई है और वो मेहनत की है, तो उसी को अगर चलाया जाए सारे मिलके इस अम्ब्रेला के नीचे, जो आज नवा कोट के अंदर न्यू कोट में हाजी शरीफ मदानी साहब ने जो मेला लगाया है, तो इस अम्ब्रेला का नाम दे दिया जाए, चाहे वो कोई भी नाम दे दे इसको, इसके अंदर इसको सजाया जाए और इसको बाकायदा ऐसी कुव्वत और ताकत के साथ लड़ा जाए, बात की जाए सब ताजरों के लिए और उनके मफादात के लिए, जो खास तौर पर हमारे साथ जो नुकसान हो रहे हैं। कभी सुनते हैं कि जी वो बंदर रोड पे डकैती हो गई, कभी सुनते हैं म्यानी रोड पे डकैती हो गई, आज सुना है मिलिट्री रोड पे 7 लाख रुपए ले गए। मेरा खुद कुर्बानी का जानवर से पका रहा हूँ और मेरे साथ मोबाइल निकाल ली, बच्चे ने वीडियो बनाई, पुलिस वालों को ले आके दिखाई, भाई ये बंदा है, कोई मसला ही नहीं भाई, आने बोले दारों को मसला ही बोले। आज 7 दिन के बाद मैंने फिर दूसरा मोबाइल ही ले लिया। मैंने कहा भाई मोबाइल तो आने वाला नहीं है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि मेरे 2 बाजारों का सदर खुद चल के जा रहा हूँ, हंस रहे पुलिस वाले कि यार तुझो भी मोबाइल कटियो, माजो बाबा हाणे शक्ल ले आ, हाणे तो करे दिखा, हाणे तो कुछ करे दिखा। तो बात ये कि ये हमारा जो शहर है बड़ा मासूम शहर है और कभी ऐसा वाकया हुआ ही नहीं है जो आज हो रहा है। तो इसके पीछे वाकई ये जो असबाब हैं, जो सारे के सारे आप सुन रहे हैं, इसके लिए हम सबकी कोशिश यही है कि आज हम आज की तवस्सुत की दावत से जो हाजी शेख साहब ने मुनक्किद की है, इसको कोई नाम दे के उठा जाए और ऐसी मजबूती के साथ इस अम्ब्रेला को पकड़ लिया जाए और फिर देखते हैं कौन यहाँ करता है कुछ। इंशाल्लाह मैं इन सब साथियों को, दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आज जिन लोगों ने आप की है मेहनत, अल्लाह पाक को। मैं 2-4 नारे भी लगवा दूं, पाकिस्तान पाकिस्तान, हाजी शरीफ बंधानी, नवाकोट बरादरी, सबको सलाम। अब मैं अनाज मार्केट से कामिल फारूकी साहब से गुजारिश करूंगा इन ख्यालात के इज़हार करना। फारूकी साहब। दोस्तों ने बहुत कुछ कह दिया, शरीफ भाई से मेरा 45 साल
या कहा सब लोग माशाल्लाह अच्छा कह गए। और दरअसल हमने एक इज्तिमा को कहा तो आज करके निकले वो उससे पूरे हुए। ये नहीं कि कल को कारोबार भी जाके किसी अफसर के साथ फोटो सेशन करवा के अपनी मीडिया पे सोशल मीडिया पे कर दे। दोस्तों का ये हाल है कि किसी SHO या किसी भी पुलिस अफसर के पास जाके सफर कर लोग बनवा के और हम अपने सोशल मीडिया पे करते हैं। तो मेहरबानी करके हम अपने आप को कमजोर ना बनाएं, हम अपने आप को एक मुतहद एक ताकतवर बनाएं। वो आए हमारे पास। मैंने कई दफा देखा है बैनर लगा दिए फला अफसर ने ये इतना जबरदस्त काम किया है, हालांकि उसने कोई काम नहीं किया। अफसर आए थे, पुलिस अफसर जिनके नाम है, जो हाफ फ्राई भी करते थे, फुल फ्राई भी करते थे। तो सख्त से अमन हो गया था, कोई बंदा मोटरसाइकिल या कोई और चीज चोरी नहीं होती थी। वो नामी ग्रामी यहाँ पर अफसर रहे। और अब भी कटपुर में मेरा एक अफसर है अमजद शेख, हमारा उससे बड़ा अच्छा दोस्ताना, उसमें एक शहर में काफी अच्छे रहा। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ मसला ये है कि सियासत की बुनियाद पे तबादले होते हैं और वो अफसर लाए जाते हैं जो सबसे ज्यादा हमारे करीब आए, हमारे काम करके दें। तो खुदारा आप आपस में इकट्ठे हो, अपने आप को मजबूत बनाएं। और मजबूत ताजिर है, ताजिर के पैसों से ये सब जितने भी महकमे हैं, जितने भी वो हैं, वो हमारे टैक्सों से उनकी तनख्वाहें जाती है। तो मेहरबानी करके अपने आप को मजबूत करें। माजरत खाऊं अगर मैंने किसी की दिलादारी की है कोई फोटो सेक्शन के ऊपर, तो मैंने अपने आप को कहा है। अल्लाह। अब मैं मोबाइल मार्केट से अम्मार फारूकी साहब से गुजारिश करूँगा, अम्मार फारूकी आए और अपने ख्याल में। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो तमाम भाइयों ने, चाचा ने, भाई ने और तमाम दोस्तों ने, आबिद फारूकी ने तकरीबन बात कंप्लीट कर दी है और तफसीलन समझा दी है। सिर्फ एक बात की मैं निशानदही करना चाहता हूँ कि हम लोग इत्तेहाद की बात करते हैं और यूनियंस की बात करते हैं। ये यूनियंस बनती हैं, इनके सदूर बनते हैं, इनके जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, लेकिन जब हमारी मार्केटों में मसले होते हैं, कोई तकलीफ आती है, तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि जो हमारा पड़ोसी होता है, जो पड़ोसी दुकानदार होता है, ये मसले कोई रात के अंधेरे में नहीं हो रहे होते, दिन दिहाड़े हो रहे होते हैं, दिन दिहाड़े ताले लग रहे होते हैं, दिन दिहाड़े बदमाशियां हो रही होती हैं। तो आप लोग कहाँ होते हैं, अपने साथियों के साथ क्यों नहीं खड़े होते? आप मिसाल ले लें, अभी चंद ही दिन पहले की कराची में जुबली मार्केट के सदर को सरेआम रोड पे घसीटा गया। उसका कसूर क्या था कि वो अपने लोगों के लिए आवाज उठा रहा था ना, तो वो बकाया ताजिर उस वक्त कहाँ थे? ऐसे सखर में दसियों मिसालें मिलेंगी आपको कि एक ताजिर पे जुल्म हो रहा होता है, उस पे बदतरीन जुल्म होता है, लेकिन हमारे साथ खड़े होंगे, अपने जनरल सेक्रेटरीज के साथ, अपने यूनियंस के साथ खड़े होंगे, तो ये यूनियन ताकतवर होंगी, तो ये कुछ अमल में लाएंगी, कुछ रिजल्ट निकलेगा। ऐसे ऐसे बातें करने से, ऐसे ऐसे यूनियंस बनाने से कुछ भी नहीं होगा। बराए मेहरबानी इत्तेहाद को कायम करें, अपने सदूर के साथ खड़े हों, अपने यूनियंस के साथ खड़े हों, इंशाल्लाह आपको तब्दीली नजर आएगी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। अब मैं आखिरी बात कहने के लिए हमारे बंदर रोड से ताल्लुक रखने वाले इस्लाउद्दीन भाई से गुजारिश करूंगा, वो अपने चंद ख्यालात से पूरी आवाम को मुस्तफीद करें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का कि यहाँ तशरीफ लाए और शरीफ बंधानी ने ये जो पिंडाल सजाया। देखो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, कहते हैं दुनिया बदतरीन होती जाएगी, बुरे लोगों की बुराई की वजह से नहीं, अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह कौल है, कहते हैं जालिम के आगे जितनी दहशत होगी उतनी ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। जिस तरह से मुमताज नकी भाई ने बोला, यकीन करो उन्होंने महफिल लूट ली। तो बात ये है, अभी कुछ दिन ताले तोड़े थे ईमानी रोड पे, तो उन्होंने बुलाया, काफी सदर को काले कर रहे थे, तलाशी लेके बंदे वहां पे खड़े हुए थे, कोई आ रहा नहीं था।
मैं उस ताजिर ने मना किया नाम उठाने से, तो मैंने धरना दिया पीछे से थाने पे। तो एसएचओ ने बोला भाई आओ एफआईआर कटवाने के लिए। दूसरे दिन वो कपड़े की दुकान पे आए, एसएचओ हमें खुद चल गया। तो हमारे तरीके का अलग ही, हम बोलते हमारे ऊपर भी एफआईआर कट जाए, डर से कुछ भी नहीं होगा। वो कहते हैं गुलामी में ना काम आती है शमशीरें ना तदबीरें, जो हो सो के यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तंजीरें। तो देखो शरीफ बंधानी ने जो एक काम उठाया है, इसको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और आवाम को देखो, बात ये खाली शरीफ बंधानी या किसी और ताजिर की नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। इनके हाथ को मजबूत करो, इंतजामिया के जो काम है वो अपने काम करे। आप देख सकते हो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, क्या 20 लाख से ज्यादा लोगों ने जानों की कुर्बानी दी थी इस्लाम के नाम पर। आज यहाँ मलूकियत कायम है, क्या शराबी जानी भी सदर बन सकता है, वजीर आजम भी बन सकता है, बड़ा ब्यूरोक्रेट भी बन सकता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े ये शराबी जानी मुसल्लत कर दिए हम पे, क्यों? कि हमारी वजह से, क्या क्यों? कि हम जो है उसका एक्शन नहीं लेते। सबसे पहले हमें अपनी इस्लाह करनी होगी। जिस दिन हमने अपनी इस्लाह कर ली, क्यों कि 2 फिरौन होते हैं, 2 फिरौन, एक फिरौन बाहर का फिरौन, एक हमारे अंदर अपने नफ्स का फिरौन है। हमें अपने नफ्स के फिरौन को मारना होगा। उस दिन देखो तब्दीली, ऐसी तब्दीली आएगी इस मुल्क में इंशाअल्लाह ताला, इस्लाम का झंडा भी लहराएगा और निजाम ऐसा होगा कि आप देखोगे कि आपकी दहलीज के ऊपर आपको इंसाफ भी मिलेगा। कल औरतें चीख रही थी असेंबली के अंदर, हमें तहफ्फुज़ दो, फलाना दो, जो रेप के केस हुए थे और कुछ से पहले ये निकल रही थी हमारा जिस्म हमारी मर्जी। तुम्हारी मर्जी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस्लाम ने तुम्हें जो हुकूक दिए वो मिलेंगे। आज तुम चीख रही हो, क्यों? इस्लाम के मुखालिफ कर रही थी। तुम्हारा रेप का कुछ भी नहीं हो, कोई सजा नहीं हुई। बच्चों का रेप होता है, कोई सजा नहीं मिलती। आप चले जाओ, कोई गरीब के साथ नाइंसाफी हो, कोई वकील महंगा करवा सकता है 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। जब इस्लामी निजाम नाफिज होगा तो वकील की इतनी फीस होगी तो गरीब भी अफोर्ड कर सकता है, अमीर भी अफोर्ड कर सकता है। तो हमें सबको चाहिए मिलके कोई ऐसा निजाम इस मुल्क के अंदर नाफिज किया जाए जो गरीब के लिए और अमीर के लिए बराबर हो। और जानी शराबी इनका बिल्कुल बायकाट हो, भले वो किसी भी ओहदे में फाइज हो। क्यों कि आप के दौर में सहाबा कराम ने जानों की कुर्बानी दी। करबला में इमाम हुसैन ने अपनी जानों की कुर्बानी इस्लाम के लिए दी। अब ये वक्त आ गया है, अभी भी अगर नहीं उठे तो दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। अब सारे मुसलमान भाई उठो और उठ के इंशाअल्लाह ताला शरीफ बंधानी का साथ दो। हम जरा खाना बना खड़े होंगे, हमें अपने खानों का नजराना देना पड़ेगा। शरीफ बंधानी का पसीना बहेगा, हमारा खून बहेगा इंशाअल्लाह। हमारे जहाँ जो काम सिक्योरिटी साहब से गुजारिश करूँगा तो अपने हालात का इजहार करें ताकि उसके बाद दुआ की तरफ जाए जा सके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम ईमानों को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आप लोगों का कि भाई आज आप लोगों ने यहाँ पे आकर माशाल्लाह जो है पंडाल सजाया। ये नौबत क्यों आई सरकार के अंदर, ये सब ताजिर बिरादरी को सबको पता है कि कम से कम पिछले 8-9 महीने के अंदर लॉकडाउन शुरू हुआ, जब से चोरी डकैती मोटरसाइकिलें ये बहुत रूज पे आ गई। शिकायत करने जाते हैं कि साईं आप एप्लीकेशन एजेंसी कटवा दो, तो उसके बाद जाके जो है आपको वहां से मोटरसाइकिल मिल जाएगी, वहां से चोरी मिल जाएगी। कोई अमल दरामद नहीं है। अब मोटरसाइकिलें चोरी डकैती बैंक डकैती सब हो रही थी। अब माशाल्लाह से आए मोतबर 2-4 आदमी और भी जो कब्जा ग्रुप है, वो भाई किसी के बाप से नहीं डरते। ये बंगाली बिरादरी है, समझ गए? इंशाल्लाह उसके भले ये सुमर हो निसार, समझ गए? कुर्बान मलाड़ो हो। मैं खुला नाम ले रहा हूँ राजपूत बंगाली वेलफेयर की तरफ से। अगर उनमें ताकत है, उन्होंने ताले लगाए, हमने ताले काट के दिखाए। अगर उनमें ताकत है, कल दोबारा ताले लगा के दिखाए, उनके घर को ताला लगा के आएंगे इंशाल्लाह। क्या समझते अपने आप को बदमाश है? जिसका बस चला 70 लाख रुपए जो हमारे जो बच्चों से ले लिए,
اور फराड हमारे बच्चों के साथ रजिस्टर कर दिए, साईं ये हो गया और वो हो गया, मालिक आने एसएचओ बोलता है हमारे बच्चे पे जो है एफआईआर दाखिल करेगा, बच्चों को बोलता है दुकान नहीं खोलो। नवीद नवाज शेख एसएचओ जो है वो बोलता है जो है अपना जो है दुकान नहीं खोलो, दुकान अगर खोलोगे तो आपके ऊपर एफआईआर दाखिल कर दूंगा। क्यों कर देगा? उसका राज है। एक दफा एफआईआर दाखिल करके तो दिखाए हमारे बच्चों के ऊपर, डरते नहीं हम किसी से भी। मैं आईजी सिंह वजीर आला मुराद अली शाह साहब से इनसे अपील करता हूं कि सक्कर के अंदर ये बदमुआनी जो फैल रही है, मोटरसाइकिल चोरी और बैंक डकैती है, कोई ताजिर महफूज नहीं। यहाँ तक के ताजिरों के बाद अब घरों के ऊपर कब्जा होने लग गया है। इतने बड़े बिल्डर जो बदमाश हो गए, आए हमारे ऊपर एफआईआर दाखिल करके तो दिखाएं। इंशाअल्लाह पूरा सक्कर नहीं बंद कराया तो हमारा भी नाम बदल जाना इंशाअल्लाह। और मैं ताजिर बिरादरी जो हमारे जितने भी सदर हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके सारे के सारे बैठ के एसपी साहब से मिले, आरपीओ साहब से मिले कि भाई ये इतनी बड़ी जो बदमाशी हो रही है, हमारे बच्चे हैं, इनके 4 बच्चे हैं हमारे यहाँ बैठे हुए और वो भी बैठे, उनके फ्लैटों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। कल परसों रात के ऊपर आके कोई पठान भाई उनके ऊपर आके उनको जो अंदर करवा दिया और फ्लैटों के ऊपर कब्जा करने फिर दोबारा आ गए। भाई कोई ताला लगा के तो दिखाए। और 4 या 5 दिन पहले जो है दुकानों को ताला लगा दिया घंटाघर अभी टावर के ऊपर, वो भी हम लोग जाके हमने लाइव चलाया है। लाइव चलाने पे हमने दुकानें खोल के भी दिखाई हैं। मैं आप सब भाई से पुरजोर अपील करता हूँ, मीडिया वाले आ जाए, इनका भी दिल की गहराई में शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग बड़ी मेहरबानी, ये हमारा पैगाम आगे तक आप लोग पहुंचाएं, बड़ी मेहरबानी। जो भाई आप लोग हैं तो मैं आप लोगों से ये जो है अपनी बात यहाँ खत्म करता हूँ कि आप सब एक हो जाएं और इंशाअल्लाह जरूरत पड़े तो लब्बे के जब एक दफा धरना देंगे, प्रेस क्लब पे भी देंगे इंशाअल्लाह और एसपी हाउस के बाहर भी देंगे इंशाअल्लाह। और आप लोगों से गुजारिश है कि सारे के सारे इंशाअल्लाह लब्बे के आने आप लोगों को। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से। थैंक यू। असल बात ये है कि आइंदा कोई भी मामला होता है, कब्जा होता है या कोई भी कोशिश होती है, चाहे वो बंगाली बिरादरी के तरफ अगर किसी की कोशिश होती है या बाजार में हमारी किसी भी कौमियत वाले बंदे के खिलाफ होती है, हम सबको एक काल पे लबेक होके वहां पहुंचना होगा। जब हमारे में ये इत्तेहाद होगा तो हमें कुछ हमारे जनरल सेक्रेटरी जो जज्बाती तकरीर कर गए, उसकी वजह ये थी कि शुरू में हमने कुछ दोस्तों ने कहा यार आपने कब्जा खोरों का नाम तो लिया ही नहीं, तो आखिर ये किसके लिए कहा जा रहा है? तो ये अंधी मतलब अंधा तीर था। असल बात है निसार सुमरो कुर्बान मलारू जो बुकला पेशे की आड़ लेकर बुकला को बदनाम कर रहा है। तो हमने इस इजलास की गुंडागर्दी नहीं चली। असल क्या है, इस इजलास से ये सब की हमारी बैठक से फायदा उठाते हुए मैंने कुछ तजावीज बनाई थी ताकि एक पैगाम आगे जाए। रिटर्न में भी हमारे दोस्त बैठे हैं, साथी हजरात बैठे हैं, हमारे मेहरबान हैं लोग। तो ये चीज जब मीडिया पे हाईलाइट होगी तो फिर उन 2 नंबर वाले काम करने वालों के बैठकों में खलबली मचेगी कि एक हमारी करार में जो हमें इसकी हमारी बैठक का फायदा उठाते हुए हमें करारदाद ये तरतीब दी है कि इस करारदाद को हम मंजूर करें, ये पूरा हमारा पिंडाल, ताकि ये अवाम तक आगे तक बात जाए, ताकि हमारा सक्खर शहर हर किस्म की मंशात, शीशा मंशात और ये आजकल तो बड़े शहर में जोरों पे मद का जुआ शुरू हुआ है, तो लोग एक तो कारोबार नहीं हो जो थोड़ा बहुत कमाए तो कोई मंशात की नजर हो रहा है तो कुछ जुआओं की नजर हो रहा है। तो सक्खर शहर से जुआ मंशात ये तमाम अड्डे खत्म कराए जाएं। ये करारदाद सब भाइयों के मंजूर है।
दूसरी बात ये, डकैतियों लूट मार के सद्देबाप के लिए एक फर्शनास अच्छे चाल चलन वाला एसपी और तमाम SHO, हमें ये पूरी टीम जो है तब्दील करने की हम करारदाद मंजूर करते हैं, ये सब मंजूर है। इसके अलावा पुलिस की सरपरस्ती में ये कुर्बान मलानो और ये निसार सुमरो, अगर इनको नहीं रोका तो ये पता नहीं कितने ये लोग बार बार निकलेंगे। देखा देखिए ना, तो भेड़ चाल देख के जब देखेंगे सारे काम आसान हो रहे हैं तो ये कमाई का धंधा बनेगा। तो इसके लिए हम करारदाद मंजूर करते हैं। उसके लिए हम CM जैसे पुलिस है उसके लिए भी हम DIG IG वजीर आला सिंह को हम लेटर अरसाल करेंगे ताकि हमारी पूरी टीम तब्दील की जाए सक्कर शेर के अमन मंशियात और इन कमजोर कब्जा खोरों से निजात के लिए। तो हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट, पाकिस्तान बार कौंसिल, सिंध बार कौंसिल, सिंध सक्खर बार कौंसिल को भी हम लेटर अरसाल करेंगे कुर्बान मनानों के लिए, ताकि उसकी रुकनीत खारिज करके इस किस्म की नापसंदीदा शख्सियात को जो वकला की बदनामी का बाइस बन रहे हैं उनको उनका लाइसेंस मुअत्तल करें। यह करारदाद भी मंजूर है। बड़ी मेहरबानी। अब मैं हाजी साहब को कहूँगा कि वो अपनी ख्याल से आप लोगों को मुस्तफिद। आए हुए ताजिर मौजूद मेरी बिरादरी के बुजुर्ग मेरे मुफ्ती साहब, यूसुफ भाई, हमारे प्रोफेसर साहब, सबको अस्सलाम। बात ये भाई थोड़ी तफसील से बात करूंगा कि आज ये नौबत हम पर क्यों आई है। तकरीबन आज से 3-4 दिन पहले मेरी बिरादरी के मुतासरीन आए मेरे पास, काई साहब हमने ये दुकानें खरीदी, इनके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, रजिस्ट्री मौजूद है, और उस पर SHO नबी शेख अपना उसकी क़यादत में कलेक्शनों के साथ वकला का जो गुरु है वो और उसके गुंडे आके पूरी मार्केट को ताला लगा दिया। तो आप हमारे साथ SP ऑफिस को चले या किसी सियासतदान के पास चले, मेरा यार हमें पहले हम तोड़ेंगे ताले, हमारी मिल्कियत है, हम कब्जा खोर नहीं, हमारी रजिस्ट्री है, उसके बाद जहाँ तुम बोलोगे फिर मैं चलूंगा, ऐसे में नहीं जाऊंगा। सिर्फ मैंने अपनी बिरादरी के 15 नौजवान भेजे ग्रेंडर के साथ, और बाकी हम यहाँ बैठे रहे अपने कम्युनिटी हॉल में। मैं अगर कोई मजामत करने आए तो एक कॉल करो तो 500 लड़का वहां पहुंचेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई गायब नहीं है। अब बात यह है, ये मसला हुआ, उसके बाद फारिग हुए, मैंने इनसे पूछा कि भला ये 15 दिन तुम्हारी दुकानें बंद रही, गली गली में एक सदर जनरल सेक्रेटरी 5-7 रुपये कमेटी रहती है, चिट्टी गली में भी, पट्टी गली में भी, उस गली में भी, टिप्टी में भी, उल्टी में भी, नीम की चाड़ी में 50-60-70 तंजीमें हैं सक्कर में। अगर एक तंजीम में 5 आदमी तो 250-300 बनते, और उतने ही जो हारने वाले वो फिर बना के बैठे हुए, वो भी घर नहीं जाते, वो भी बैठे हुए। तो भाई 500 आदमी आपके पास कोई आया? बोला एक आदमी भी नहीं आया, पूछने भी नहीं आया कि तुम्हारी मार को ताला लगाए तो आप मुतासिरीन हैं, आप मजलूम हैं, हम आपके साथ खड़े। बोला कोई भी नहीं आया। अब मैंने गौर व फिक्र किया, अपनी पिछली जवानी पर किया। 20-25 साल पहले जब जवान थे हम, तो हम देखते थे कि जब ताजिर का कोई मसला बनता, कोई लूटमार होती थी या कोई और प्रॉब्लम होता, तो फौरन ताजिर जो है घंटा घर में धरना मारते, DIG भी वहां आता, SHO भी आता, सक्खर का MA भी, MP भी वहां आते। अब जो मैंने देखा फेसबुक पे कपड़ा मार्ग में चोरी हुई, SHO या बाजू जोर मारो तो DSP आ जाता। वो भाई वो मुंतखब भी बात है, वो बोलते हैं तुम इधर आ जाओ, इधर वो इधर नहीं आते, वो इधर आता है। इसकी वजह जो लोग अक्सरियत में इस फील्ड में आए इलेक्शन के अंदर मार्केटों को बनने के लिए या बिरादरी के बनने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद के लिए, ये दस्तार अपनी सियासतदान की दहलीज पे रखी है।
इस दफ्तार को सियासतदान की दहलीज से वापस उठाओ, बेशक इसको उठाओ। आज जरा बदल होगी, इस दफ्तार को वापस उठाना पड़ेगा उसकी दहलीज से। आज कोई आता नहीं, पूरी मार्केट को ताला लगा दिया 13 दुकानों को। कोई किसी की दुकान खुली है, बोला 2 दुकानें खुली है, एक अशोक कुमार वकील, एक जज की, बाकी को बढ़िया बैठे यहाँ पे। उसके बाद जो मैंने इनको कहा कि तुम नहीं जाओ किसी के पास, इनके साथ जो है सियासत भी साथ है, इनके पुलिस भी साथ है और भी ताकतें साथ है। अपन चलते हैं तो आईजी के पास चलते हैं, एआईजी बैठे हैं। जब वहां गए उसने एसएचओ को फोन किया तो उसने सब बताया कौन सा सियासत का इनकी सपोर्ट कर रहा है और एसपी सपोर्ट कर रहा है, तो मसला कैसे हल होगा? अब इसीलिए भाई इत्तेहाद की जरूरत है, इत्तेहाद बनाए, मुंतसिर बात है। इंशाअल्लाह ताला ये बनाया है, इसको आगे ले चलेंगे। फिर एक मीटिंग करेंगे, उसमें सिर्फ पार्टी हजरात को, ओहदेदारों को बुला के इंशाअल्लाह इस मसले का एक तंजीम का नाम भी देंगे और इंशाअल्लाह डट के ये बंदानी बिरादरी कर क्यादत करेगी। यार बड़ी बिरादरी हो 4-5 जैसा करनी, बंदानी बिरादरी, मेमन बिरादरी, कंबो बिरादरी, कुरैशी बिरादरी, तो सब बैठे यहाँ पर। फिर मसला क्या है? एक आवाज पे 100 आदमी, 1000 आदमी आ सकते, खुद आएगा, एसएचओ भी आएगा, एसपी भी आएगा, तुम्हारी चाहे वारदात भी आएगा। आज कोई आता भी नहीं, इतनी हमारी इज्जत खराब हो गई। बस भाई अपना मेहरबानी, शुक्रिया। अब मैं मुफ्ती साहब, मुफ्ती मोहम्मद यासीन साहब से गुजारिश करूँगा कुछ ख्यालात का इजहार भी फरमाए, फिर दुआ खैर करवाएं। काफी टाइम हो गया, बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने ताजिर हजरात ने अपने ख्यालात का इजहार फरमाया और सभी हजरात ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक होना चाहिए। लेकिन ये एक ज़बानी हद तक है, जब तक इस पर अमली तौर पर इसको अमली जामा न पहनाया जाएगा उस वक़्त तक इस इत्तेहाद की बात का कोई एतबार नहीं। हालात के जायजे से मालूम हुआ कि आज हमारी हिम्मत और ताकतें इस कदर कमज़ोर हो गई कि इस उम्मत के ऊपर एक तातारियों का फितना आया था कि इन तातारियों के फितने की वजह से इस उम्मत को तहरीक किया गया था। और उस ज़माने के अंदर इस कदर हिम्मतें पस्त हो चुकी थी कि एक तातारी औरत अपने खेमे से खंजर ले जाने के लिए जाती है और मुसलमान को कहती है तुम यहीं खड़े रहो, मैं तुम्हें आकर इससे ज़बह करूँ। वो मुसलमान 1 इंच आगे और पीछे नहीं हुए और बिल आखिर अपनी जान दे देता है, लेकिन वहां से हटता नहीं। शायद हम पर बुज़दिली इस तरह तारी हो चुकी है और हम इस तरह जो है वो कमज़ोर हो चुके। हमें चाहिए कि अपनी हिम्मत को काम में लाएं और हिम्मत यही है कि एक उंगली एक होती है और 5 मिल जाती हैं तो ये पूरा एक मुक्का बन जाता है। तो इत्तेहाद इत्तेफाक के जरिए से हम बहुत कुछ कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। अल्लाह ताला हमारे शहर को अमन और सुकून का गहवारा बनाए, बल्कि हमारे इस मुल्क को अमन और सुकून का गहवारा बनाए और जिस मकसद के लिए इस मुल्क को लिया गया उस मकसद को हासिल करने की हम सबको कोशिश और तवज्जो करने की तौफीक नसीब फरमाए। आप हजरात का यहाँ आना और यहाँ बैठना और इस पर आपने जो इजहार ख्याल किया, अल्लाह ताला इन सब को कबूल फरमाए और इसकी बरकत से अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को और हमारे शहर को अमन और सुकून का गहवारा बनाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ए रहीम व करीम अल्लाह अपने करम और अपने फजल से हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए, हमें आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक अता फरमा दीजिए, एक दूसरे के साथ हमदर्दी और गमखारी की तौफीक अता फरमाइए, हमें हर किस्म के जुल्म और जालिम से महफूज फरमाइए, हसद और हासिद से हमारी हिफाजत फरमाइए। अल्लाह हमारे इस मुल्क को अमन सुकून का गहवारा बना दीजिए, हमें शरीयत और सुन्नत की बहारें अता फरमाइए, हमारे इस शहर को अमन और सुकून वाला बना दीजिए। जैसे पहले हमें आपस में मोहब्बतें, उल्फतें, इत्तेहाद और इत्तेफाक था और एक दूसरे के साथ हम मुआविन और मददगार बन के एक दूसरे के साथ ताउन करते थे, अल्लाह वो बहाने फिर से हमें नसीब फरमा दीजिए। हमारे कारोबार की हिफाजत फरमाइए, हमारी मार्केटों की हिफाजत फरमाइए, हमारे घरों की हिफाजत फरमाइए,
ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے. جن ساتھیوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا اللہ تعالیٰ ان کی تمام کی خدمات کو قبول و منظور فرمائیے. ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق کی نعمت نصیب فرمائیے. ہمارے اس ملک کو ہر قسم کی بیماریوں بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ فرمائیے. رب کریم کرم اور فضل کا معاملہ فرمائیے. بیماروں کو صحت عطا فرما دیجیے. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دیجیے. جو مرحومین ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ان سب کی کامل مغفرت فرما دیجیے. ہمارے اس ملک کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کا گہوارہ بنا دیجیے. ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل اور اپنے کرم سے قبول و منظور فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین یا رب العالمین. تمام لوگ کھانا کھا کے جائیے گا.